تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا. میں دکان سے لوٹا ہوں تو میں نے جب دیکھا ہے نا تو اسد بھائی یہ کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی, اس کے ساتھ یہ ننگی پڑی ہوئی تھی. تو جب میں نے دیکھا ہے تو میں بھائی آپ کو کیا بیان کر سکتا ہوں, میں اتنا بھائی جان کوئی باپ بھی سن رہا ہو تو پلیز میری یہ گزارش ہے کہ میرے دل سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی. ایک غیرت مند ہو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین, میرا جو یہ سامنے نمبر آ رہا ہے یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. پاکستان میں جہاں بھی جدھر بھی کوئی بھی مسئلہ ہو ہم آپ لوگوں کے لیے خدمتی حاضر ہیں. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پر باتیں کرنا چاہتے ہیں یا مجھے کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کال نہ کریں. کال کے بجائے اگر آپ لوگ وائس میسیج کریں اور اگر کسی مسئلے کے لیے آپ لوگوں نے کال کرنا ہے تو اس کا ریپلائی آپ لوگوں کو ملے گا. اس وقت ملتان کے جو ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں اور میرے پوری ملتان کی میڈیا سے ایک گزارش ہے کہ اس کا نمبر میں اس پروگرام میں دوں گا. آپ لوگوں نے اس کا نمبر ملانا ہے اور ملتان کے جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس سے میری گزارش ہے کہ اس کی بھائی کے لیے آواز اٹھائیں. ناظرین کو آپ کی بیوی کی پک نظر آ رہے ہیں تو یہ جو آپ نے مجھے دکھایا اور یہ ناظرین کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی بیوی ہے؟ جی بالکل میری بیگم ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ یہ جو لڑکا ہے جو اس کے ساتھ ایک ہی مطلب آپ کی بیوی کے ساتھ جو پک بنائے ہیں یہ لڑکا کون ہے؟ یہ جی ایاز حسین خاکی ہے, خاکی پنجانی کے ذمہ دار کا بیٹا ہے اور اس نے ہی میری بیگم کو بلیک میل کیا ہوا ہے, گھر سے بھگانے کا یہی ہے سارا کچھ. اور جو میری وائف ہے اس کا اس کے ساتھ ناجائز تعلق تھا اور جو جب یہ گھر سے نکلی ہے نا تو چیمہ بھائی میں آپ کو اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ ہماری معاشرے میں کتنی عزت تھی اور کتنے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. 8 مہینے سے میں خوار ہو رہا ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ بتائیں 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. میں ان کے لیے روزگار ڈھونڈوں یا میں ان کو گھر میں پناہ دوں یا ان کی پرورش کروں, تو پلیز آپ میری جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ میری کریں. باقی اللہ پاک سے امید یہی ہے کہ میرا انصاف ہوگا. اچھا, آپ یہ ملتان کا جو علاقہ ہے اس میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ ملتان, ضلع ملتان, تحصیل شجاع آباد, موضع خاکی پنجانی. اچھا, یہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ آپ کی بیوی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلقات ہیں. جو سوتیلا باپ ہے جیسے شروعات میں آپ نے بتایا کہ میں کمرے کے اندر آیا, آپ دوبارہ بتائیں وہ بات. دیکھیے کچھ باتیں ایسے تھے کہ اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. کیا ہوا جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو مجھے بتانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت گند باتیں ہوتے ہیں, مجھے شرم آتے ہیں ایسے بات کرنے, مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کروں. پلیز میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری مجبوری ہے, آپ لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ بات برا لگتا ہے. اگر میرے کوئی بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میرے مائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی وہ اس ویڈیو کو چھوڑ کے, یہ صرف میں وہ مردوں کے لیے بنا رہا ہوں اور ہمارے بہنیں یہ ویڈیو چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس بچے موجود ہیں تو اس ویڈیو کو یا تو سکپ کریں یا ان کو چھوڑ دیں کیونکہ میرا مجبوری ہے ایسے حقائق کو سامنے لانا. گھر میں جب داخل ہوئے کیا ہوا؟ جی تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا. میں دکان سے لوٹا ہوں تو میں نے جب دیکھا ہے نا تو اسد بھائی یہ کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی, میرا ستیلا سسر, اس کے ساتھ یہ ننگی پڑی ہوئی تھی. تو جب میں نے دیکھا ہے تو میں بھائی آپ کو کیا بیان کر سکتا ہوں, میں اتنا بھائی جان کوئی باپ بھی سن رہا ہو تو پلیز میری یہ گزارش ہے کہ میرے دل سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی. ایک غیرت مند ہو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک ستیلا باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا. اچھا, آپ جب اپنی گلی محلے میں راستے میں آتے جاتے ہیں, آپ کی بڑی بیٹیاں بھی ہیں, ویسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ بھی کوئی آئے گا آپ کی بیٹی کا؟ جی نہیں آئے گا. یہی تو سر, اسی لیے تو میں انصاف مانگ رہا ہوں. میری بچی اسکول جاتی ہے تو کل 2 دن پہلے مجھے کہنے لگی ابو
मेरी जो क्लास फेलो है ना, अब मुझसे बोल रही थी कि तेरी अम्मी निकल गई है यार के साथ। तो अब मुझे इतनी शर्मसारी हुई ना क्लासेस के अंदर, तो मैं सर नीचे करके बैठी रही, मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी बेटी की भी तो इज़्ज़त है ना, जवान बेटी है मेरी। नहीं तो आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते थे, सब कुछ अपने हाथों से दे देते, वो 10 के बजाय आप उनको 20,000 देते थे, क्यों हुआ ऐसा? क्यों किया उसने? वजह क्या बनी कि 4-5 बच्चे आपसे ही हैं, ठीक है ना? तो क्या वजह बनी कि ऐसा वजह तो नहीं है, मतलब आपकी जो वाइफ है वो खूबसूरत है या आप मेरे तरह जैसे काला है, ऐसी कोई बात तो नहीं है? जी बिल्कुल खूबसूरत तो है, लेकिन वो जो अयाज नामी लड़का है ना, तो पहले भी मैंने आपको बताया कि उसने इसको ब्लैकमेल किया हुआ है, इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इस वजह से वो बच्चों को नहीं देख रही। ठीक है, वो तो ब्लैकमेल हुई है, वो तो बात तब आ जाती है ब्लैकमेलिंग की जब वो अपनी मर्जी से उसके साथ लगी हुई हो, तब उसकी एक पिक बनती है, तब उसकी एक वीडियो बनती है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, क्यों किया उसने ऐसा? आपको कोई शक भी नहीं हुआ उनके ऊपर? नहीं, मुझे 18 साल हो गए हैं शादी को हुए, मैंने कभी भी ज़िंदगी में मैं इसके ऊपर मैंने शक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया शक मैंने। मुझे एतमाद था इसके ऊपर और मेरी पसंद की शादी थी, मैंने कभी इसके ऊपर। कोई ऐसा तो नहीं कि आपके माँ बाप ने आपका रिश्ता उसके साथ ज़बरदस्ती किया हो? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे माँ बाप भी राज़ी थे, मेरी हंसी खुशी शादी हुई है, बहुत अच्छी तरह से शादी हुई है हमारी। ये सबको पता है कि मेरी जैसे एक शादी होती है वो करके मैंने दिखाई है अपनी पसंद। अच्छा, अभी जब ये गई है अपने आप घर आ गए हैं सौतेले बाप के साथ, ये लगी हुई ही थी, उस टाइम आप पे क्या गुजरा? आपके घर पे पिस्टल या कोई छुरी या कोई ऐसा चीज़ नहीं देता आपकी उसको मार देते? नहीं था, होता तो मैं मार देता, होता तो मैं मार देता। चीमा साहब ये गैरत का मसला है, लेकिन मैं अब ये बयान कैसे करूं? मेरा दिल दुखता है कि ये मेरी बेगम, इतना मुझे 20 साल से उसके ऊपर एतबार था, लेकिन एक पल में उसने मेरा एतमाद को ठेस पहुंचाई है। तो प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस के पास गए हो? जी मैंने, इन्होंने, ये सुतेले बाप ने मेरे साथ खिलाफ केस कराया हुआ अदालत के अंदर 30 लाख रुपए का हक मेहर का, और मैंने जवाबी कार्रवाई में मैंने उनका जवाब भी दिया है, और मैंने वकील के साथ इस ससुर के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी की हुई है। अब क्या बना? एफआईआर का क्या बना? एफआईआर अभी नहीं कटी, वकील साहब बोल रहे हैं कि वो तमीलें करने गए हैं तो वो छुप गया है, उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया है, और वो जो है ना। अभी आपकी बीवी कहाँ पर है? अभी इसी सुतेले बाप के पास ही है। उसका कोई कांटेक्ट है आपके पास? जी मेरी सास माँ के नंबर हैं मेरे पास। मुझे नंबर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं मीडिया पर्सन बात कर रहा हूँ। आप कवल बात कर रही हो? जी आप कौन? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। कवल कैसी हो? ठीक हो? जी आप बताएं। अच्छा कवल, मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। ये कैमरा लगा हुआ है पयास के हवाले से, कैमरा लगाए हैं, हमारे साथ यहाँ भी बैठे हैं। आप मुझे बताएं कि पयास के साथ जो आपका मामला चल रहा है, क्या मामला चल रहा है? आपने इससे खुला लिया या नहीं? खुला लेने वाले हैं। अच्छा, खुला लेने वाले हैं। आप मुझे ये बताएं कवल कि आपके इतने बड़े बड़े की मसला क्या है आपके इसके साथ, जब आप इनसे खुला लेने वाली है, मसला क्या है? अच्छा हेलो जी जी। कवल सिस्टर, मेरे सवाल का जवाब दे। कैमरा लगा हुआ है, बाद में ये नहीं कहना कि आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने बड़ी बड़ी बेटियां, जो आपके इतने प्यारे बेटे हैं, बच्चियां हैं, आपने उनको छोड़ के आप गई हो। आपके कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैंने सुने हैं जो सौतेले बाप के साथ आप कुछ बात भी कर रहे हैं, जो वो कह रहे कि एक गुनाह तो मैंने किया और इसको आप पूरा भी करना है। इसका क्या मकसद है? बात सुनिए आप मेरी। है ना, जो जरूरी नहीं है कि जो देखा जाए वही सच होता है। अच्छा, जो इसने देखा है ये सच है, झूठ है? झूठ इस तरह है ना, मेरी आप बात सुने। बच्चे हमारे घर थे बहुत ज्यादा। अच्छा। मुझे शौक नहीं है बच्चों को छोड़ने का। अच्छा।
समझ आई है। बस यही है कि उस टाइम बहुत बात हो रही थी, उसकी वजह से मैंने अपने अब्बू को कॉल की थी। ठीक है, ठीक है ना, मैंने अपने अब्बू को कॉल की थी भाई मुझे आके यहाँ से ले जाओ। इससे आपको क्या मसला था मुझे बताएं सिस्टर। आपको मुकम्मल बताना मेरा बात तो सुनिए आप। जी बताएं। ठीक है ना, वो मानती हूँ मेरे पहले अब्बू हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ मेरा कोई ऐसा वैसा बात नहीं है जो आप वो बता रहे हैं मीडिया में हमें दे दिया, ये करना है वो करना है। बात सुनो, जो जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है, जिसके साथ नहीं होता सिर्फ बातें होती हैं। चलो मैं आपकी ये बात मानता हूँ, मैं ये भी बात मानता हूँ। ये जो आपकी पिक आ रही है पूरे दुनिया देख रहे हैं, आपकी जो पिक है जो जमींदार का लड़का है उसके साथ जो पिक बनी है ये क्या है? पिक जो बनी हुई है, हाँ, गैर मर्द के साथ आपका पिक कैसे बनी? जी ना, थोड़ी बहुत बात हो गई थी, तो गलती हो गई थी, इंसान से गलती, ये बात तो नहीं। यही बात है कवल, आपसे गलती हुई है, इसने आपको फिर भी माफ किया है और आप अपने बच्चियों को छोड़कर ना, आपको फिर यही समझ नहीं आ रही ना, माफ करके फिर गंदा करने की बात, ये बात नहीं अच्छी लगती ना। जब आपने माफ कर दिया, हर चीज खत्म करके आप मुल्तान आ गए हो, बैठ गए हो, बच्चों को भी ले आओ, बड़ी बेटी को नहीं ले आए, मैं नहीं ले आता, यहाँ के माहौल सही नहीं है घर। जब आपने रहना मेरे साथ है, आपने घर अकेला लेना है, बच्चों के साथ रहना है, तो फिर ये बातें छोटे छोटे और उस चीज के इल्जाम देने, उस चीज के बार बार ताने मारने, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है कवल मुझे बताएं, अगर आपका ये मर्द फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपकी ये जो पिक है ना जमींदार के साथ जो आपका ये पिक है, अगर बकौले जमींदार की बेटी के साथ आपके शोहर का पिक होता तो इसके बजाय आप क्या करती? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें बस। मैं करती, ये तो बात नहीं है। क्या वो कह रहे हैं ना कि उसने ऐसे किया है, लेकिन बात नहीं किया नहीं है कवल सिस्टर मेरी देखिए मेरी बहन, आपकी पिक मेरे पास मौजूद है जो पूरा दुनिया देख रहे इस वक्त। आपकी पिक जमींदार क्या जो लड़का 3 साल पहले की है, अभी आ गई आप अपने बात पे, 3 साल पहले की बात है ना, अभी आ गई। अच्छा मुझे बता, मेरे सवाल का जवाब अभी आपने देने, मेरे सवाल का जवाब देने, मेरे सवाल का अभी आपने मोबाइल काटना भी नहीं है, ये 3 साल पहले पुरानी पिक है बात की है आपने, और आपकी जो खुला लेने की बात है ये 6 महीने से चल रहा है। तो सिस्टर आप मुझे ये बताएं, 2 साल ये फिर भी आपको बर्दाश्त करता रहता है। अगर आपने बहन बुलाया तो आप बहन की बात भी सुने। जी, तो मेरे बात सुनोगे ना, मेरे बात सुनोगे तो मैं आपका बात सुनूंगा ना। मेरे बात एक तरफ की नहीं होती, ताड़ी एक तरफ नहीं निकलती, ठीक है ना। आप बात मेरी सुने, अगर आपको बहन आपने मुझे बुलाया तो फिर आप मेरी भी बात सुनो। मैं सुन रहा हूँ जी, बोले। बात है 3 साल की, हाँ, और बातें भी हमारी 3 साल से सुलह भी हो रही है, और फिर दोबारा वही काम हो रहा है, फिर सुलह हो रही है, फिर मना के दे देते हैं, फिर ऐसे करते करते 3 साल हो गया। अच्छा, अब ये ज्यादा मतलब 6 महीने से ही हो रहा है, 1 साल हो गया यहीं के। इसने हद पार ऐसे किया ना, टॉर्चर करता था, मारता था, बदतमीजी करता था बहुत ज्यादा। देखिए सिस्टर, देखिए सिस्टर, जब उसने मना के मेरी अम्मी ने मुझे दे दिया था ना, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था, घर को घर कर रहे थे। अच्छा, मुझे भी पता है, मेरे भी 5 बच्चे हैं, मैंने पैदा किए, मुझे इतना पता नहीं है। जिसने पैदा नहीं किया वो बातें कर रहे हैं, जिसने पैदा किया उसका दिल को कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, मैंने इसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना, हर तरीके से। अच्छा, इसने बहुत टॉर्चर किया है, गंदे आते हैं, गंदे बातें, बिल्कुल फजूल। देखिए सिस्टर, मेरी बात सुने, अब मैं आपका बात पूरा हो गया, मेरे बात सुने सिस्टर, अब मेरा बात भी सुन लेना, मेरा बात भी सुने प्लीज, थोड़ा सा मेरा बात भी सुन लिया करें। मेरी सिस्टर बात ये है ना कि एक मर्द, आपके इनसे 5 बच्चे हैं, ठीक है, आपकी शादी के कितने साल हुए? मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दें, फिर बाद में आप बात कर सकते। 15 साल हो गए, ठीक है। अच्छा, 15 साल में ये 12 साल, आप 12 साल पहले जो 12 साल आपने इसके साथ गुजारे, आप उस वक्त क्यों नहीं भागी इनसे, क्यों नहीं गई आप इनसे? उस वक्त की ठीक था, अब ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों गलत हो गया। मेरे सवाल देखिए सिस्टर, जब मैंने आपकी बातें सुनी, मेरा भी बात सुनना है आपने। 12 साल ये ठीक था, उसके बाद आपने जमींदार के साथ अफेयर चलाया, उसके साथ रिलेशन चलाया, इन्होंने हाँ देखिए मुझे पता है। वालेकुम सलाम, इसको मोबाइल दे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ।
नहीं, आप पहले मुझसे बात कर लेना। मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं तो जो बात कर रहा हूं माँ जी, मैं सबूत के बिना पे कर रहा हूं ना। अब मैं सबूत आते हैं, ये आपको पता चल रहा है सबूत है। माँ जी मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे, जमींदार के साथ इसकी पिक किस चीज की है? हेलो नाजरीन, नंबर ही काट दिया उन्होंने, ठीक है। वो कह रहे कि इनके साथ मुमारी होती है, लड़ाई होती है, तो 12 साल 15 साल उनका शादी का हो चुका है, 12 साल में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। 3 साल में, ये 3 साल में क्यों चल रहे हैं? जो तस्वीर नज़र आ रहे हैं ज़मींदार के साथ, उसका पिक बना, इसने मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जब वो तस्वीर इसके जहन में आता है तो गुस्सा तो इनको आएगा ही। तो जाहिर सी बात है एक दो बात तो ये ज़्यादा करेगा, क्योंकि आप तस्लीम भी कर रही हो कि मैंने गलती की है। तो गलती भी की है, जब आपने गलती की है तो घर से क्यों भागी? अभी आपकी जो प्रूफ है ना, जो सौतेले बाप के साथ जो आपने बातें की हैं, वो एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन अगर मैं उसको भी चलाऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन खुदा के लिए, आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, बेटी हैं, उसको देखकर प्लीज़ खुदा का वास्ता दे। तो आपको मैंने अपना बहन माना, मैंने आपको बहन कहा कि आप घर वापस आएँ। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आपकी वजह से ये ख़ुदकशी कर सकता है। आपकी वजह से, जैसे इसने मुझे मोबाइल पे बताया कि मैं इतना तंग आ चुका हूँ कि मैं अपने पूरे घर में अपनी बेटियों के ऊपर पेट्रोल चढ़ाकर, ख़ुद पर भी पेट्रोल चढ़ाकर मैं ख़ुद को आग लगाना चाहता हूँ। मैंने इनको बोला कि भाई प्लीज़ आप ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि क़यामत के दिन आपने फिर मेरा गिरबान पकड़ना है कि मैंने तो चीमा आपको बताया था कि मेरा इंटरव्यू करे, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन ये बातें कैमरे पे लाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं इसने क्यों इस बात को भी कैमरे पे लेकर आए हैं। ये इनकी मर्जी है, मैं किसी को ज़बरदस्ती बिठा के कैमरे पे नहीं लाना चाहता हूँ। मुल्तान के जितने भी मीडिया हैं, और हाँ एक बात हो जो बहन मैंने आपको बताया ना कि मैं आऊँगा, आपका भी इंटरव्यू करूंगा, आमने सामने बैठकर आपका भी मैं इंटरव्यू करूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं ये इसका नंबर है और आप लोगों ने इनसे ही कांटेक्ट करनी है।